This belongs to United States, and he is running Lemmy Dawn Ministries International. He has been into seven countries in this world, and he is very passionate to win these souls. Tonight he is here in Pakistan among us to win the souls for Jesus Christ, and Lord is using him mightily. He recently organized a huge crusades in Lahore, and he saved so much people, especially Muslims, and so other peoples got healed through Brother Chris. He is doing a really nice ministry in this world, and his next trip is in Africa, where he is going to be 7 different countries of Africa and some dangerous areas where he will minister the gospel of Jesus Christ. And now he is the international director of Bread of Life Ministries Pakistan, and the international director of our church, and he is going to be give his soon church name. और अब ये चाहते हैं कि खुदावंद की जिंदा आवाज आप तक पहुंचाए. It's an honor to be in our Father's house today, amen. भाई कह रहे हैं कि ये बड़ी इज्जत की बात है कि आज मैं अपने बाप के घर जमा हुआ हूँ. When my brother Imran told me about everyone here, I couldn't wait to get here. जब जैसे ही मेरे भाई इमरान ने मुझे आप सब के बारे में बताया, मैं बहुत खुशी से भर गया और मैं एक सेकंड भी वेट ना कर सका कि मैं आपसे मिलूं. In my country, me and my people have been praying for each of you for several months. मेरे मुल्क में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत महीनों से दुआएं कर रहे हैं. We have not only been praying for you, but also for the work that God is about to be doing here. हम सिर्फ दुआएं ही नहीं कर रहे, बल्कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं ताकि खुदावंद का कलाम जो है पाकिस्तान में बढ़ोतरी पाए. As my brother said, my name's Chris Busher and I'm from the United States. जैसा कि मेरे भाई ने आपको बताया है कि मैं क्रिस बुशर हूँ और मैं अमेरिका से हूँ. I'm the director and founder of an international ministry called Lay Me Down Ministry. और ये जो है वो इंटरनेशनल मिनिस्ट्री इनकी है, Lay Me Down Ministry, उसके ये फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं. I came here today to not only tell you a little bit about our ministry, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताने नहीं आया, but also what God is about to be doing here in your community. बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा आपके मुआशरे में काम करना चाहता है. I'd like to read a passage of scripture now. मैं चाहता हूँ कि मैं खुदावंद के कलाम में से कुछ पढ़कर आप तक पहुँचाऊँ. A passage of scripture that really means a lot to me. और जो चैप्टर मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो मेरे लिए बड़ी अहमियत का हामी है. It will describe a little bit about my ministry and my heart for you. और ये जो पैसेज मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो मेरी मिनिस्ट्री के बारे में आपको बताएगा और मेरे बारे में बताएगा. It's found in the Gospel of John in chapter 12. और यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब, starting in verse 24. 24 आयत से. Verse 24. Most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इब्ने दाऊद जलाल का, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर ना जाता अकेला रहता, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है. He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज करता है. If anyone serves me, let him follow me, and where I am, my servant will also be. If anyone serves me, him my Father will honor. अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादिम भी होगा. अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा. This passage describes the heart of the gospel message. ये जो हवाला है वो बयान करता है बाइबल के नए अहदनामे के दिल को. It's the core principle to the gospel of Jesus the Christ. ये यीशु मसीह की जो तबलीग है उसका मेन असूल है. The gospel of Jesus यीशु मसीह की खुशखबरी is about having to die to find that life. यीशु मसीह की खुशखबरी ये है कि अपनी जिंदगी को मारना है और अब्दी जिंदगी को हासिल करना है. About taking that ultimate sacrifice for your king. और अपने बादशाह के लिए कुर्बानी देना है. Most of us will not have to give our lives literally for the gospel. में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदावंद की
बाइबल के लिए, खुदावंद के कलाम के लिए नहीं वक्फ की। Most of us have to just deny our flesh. हमारे दरमियान बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत सी जिस्मानी ख्वाहिशात हैं, To make Jesus Christ the Lord of your own life. अब यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा बनाइए। But I don't want you to be ignorant of this, brothers and sisters. To not be aware of this. मैं आपको इस बात से बखूबी वाकिफ करना चाहता हूँ। Since the gospel of Jesus was wrote down, जब से यीशु मसीह की बाइबल जो लिखी गई है, खुशखबरी लिखी गई है, and since the days that my Jesus walked this earth, उन दिनों से जब से यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, there have been over 300 million martyrs that have willingly gave their life to advance this gospel. बहुत तकरीबन 30,000 से भी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों को नमूना बनाया है इस बाइबल को फैलाने के लिए। And over half of them happened in the last 100 years. और ये सबसे ज़्यादा उस वक्त आखिरी 100 साल में हुआ है। In fact, 11 of the 12 original apostles gave their life in defense of the gospel. यीशु मसीह के जो 11 और 12 शागिर्द थे, उन्होंने बाइबल के लिए अपनी जिंदगियों को वक्फ कर दिया। The other one was tortured several times and then exiled to an island. Exiled, sent away to an island. और इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिनको यीशु मसीह ने बहुत दूर जगहों पर भेजा। The gospel message that I preach ये बाइबल की खुशखबरी जो मैं आज बयान कर रहा हूँ is finding life through that death. और उस मौत के जरिए से जिंदगी को हासिल करना है। Because we know that the life that is about to come हम जानते हैं कि जो जिंदगी आने को है, is so much better than this present world. वो जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है इस दुनिया की जिंदगी से। When I was a young child, जब मैं एक छोटा बच्चा था, I was given every opportunity in this world. मेरे पास दुनिया की हर एक जरूरत की चीज थी, हर एक ख्वाहिश थी। I came from a life of plentiful and a life of security. मैं एक बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक रखता हूँ और मेरी जिंदगी बहुत ही महफूज थी। I came from a life where I had nothing to worry about. मेरी जिंदगी ऐसी थी कि मुझे किसी चीज की भी फिक्र ना थी। But I didn't know this Jesus. लेकिन मैं यीशु को नहीं जानता। I didn't know this Jesus until I was 19 years old. मैं यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था, हत्ता कि जब मेरी उम्र 19 साल हो गई थी। When this Jesus met me, जब यीशु मसीह मुझसे मिला, when he found me, जब उसने मुझे ढूंढा, I was a horrible person. मैं बहुत ही गुनहगार शख्स था। I only lived for the things of this world. मैं सिर्फ इन दुनियावी चीजों के लिए जिंदगी गुजार रहा था। I was only interested in making a lot of money. मैं बहुत सी पैसा कमाने के चक्कर में था। And I would do anything to make that money. मैं कोई भी काम कर लेता था पैसा कमाने के लिए। This Jesus met me. तब यीशु मसीह मुझसे मिला। This Jesus healed my body when I was in absolute need of him. यीशु मसीह ने मुझे उस वक्त एक शिफा बख्शी जब मैं वाकई ही शिफा का मुस्तहिक था। And after my encounter with this Jesus, और जब मैं यीशु मसीह से मिला, बातचीत हुई, I spent the next several days reflecting on what happened. तब मैंने अगले चंद दिन यीशु मसीह की तलाश में गुजारे। I came to the conclusion तब मैंने यीशु मसीह को और ज्यादा अच्छे तरीके से जानना शुरू किया। that my only acceptable response तब मैंने जिस वजह से यीशु मसीह को कबूल किया, for a God coming down to meet a horrible person like me ये कि यीशु मसीह इस दुनिया में मुझ जैसे गुनाहगार के लिए आया, was to lay my life in front of him और मैंने अपनी जिंदगी उसके आगे निछावर कर दी and say, Jesus, I only want you. यीशु मसीह मैं वही करना चाहता हूँ जो तू कहता है। जोरदार तालियां। I want तुझे हासिल करना चाहता हूँ। Since that day, January 23rd, 2006, 23 जनवरी 2006 से I have decided to live my life in a way that most of my country does not. मैंने वो फैसला तय किया कि मैं अपनी सारी जिंदगी यीशु मसीह के लिए वक्फ कर दूंगा, जैसा कि मेरे मुल्क में ऐसा बहुत कम होता है। The churches in my country and church leaders, मेरे मुल्क में जो गिरजाघर हैं और उन गिरजाघरों के रहनुमा, they fear the things in this world too much to advance the gospel. वो इस दुनिया की चीजों से बहुत डरते हैं और सही तरह से कलाम बयान नहीं करते। The average Christian in my country, मेरे मुल्क में जो औसत है क्रिश्चियनों की, when it comes to going on a mission trip or going to another nation to declare Jesus as Lord, जब मैं दूसरे चर्चेज में दूसरी जगहों पर मिशन ट्रिप के लिए जाता हूँ कि यीशु मसीह की अंजील की खुशखबरी दूं, they'll say, Lord, I will go.
वो कहते हैं कि यीशु मसीह मैं जाऊंगा, but first provide the way for me. लेकिन पहले मुझे पैसा दो। Some of them will even say, Lord, here I am. बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह मैं इस जगह पर हूँ, Send someone else. मैं किसी और को वहाँ पर भेज दो। I got too much going on right here. मेरे पास बहुत सा काम है इसी जगह पर करने के That लिए। is not the gospel message. ये बाइबल की मुनादी नहीं है। I came to this country to be with people like you, मैं इस मुल्क में आप जैसे लोगों के लिए आया हूँ, because it's people like you क्योंकि आप जैसे लोग that know about the gospel message. जो यीशु मसीह के कलाम के बारे में जानते हैं। Since coming to Pakistan, जब से मैं पाकिस्तान में आया हूँ, I've met so many genuine believers. मैं बहुत ही खास लोगों से मिल चुका हूँ जो वाकई ही सच्चे तरीके से यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। जोरदार तालियां। I've met so many people that are hungry for the Word of God. मैं बहुत से लोगों से मिल चुका हूँ जो वाकई ही खुदा के कलाम के लिए भूखे हैं। A lot of people in my country say America needs Jesus too. बहुत से लोग मेरे मुल्क में कहते हैं कि अमेरिका के जो लोग हैं उनको भी यीशु मसीह की जरूरत है। They say, why don't you stay here and preach to us? वो मुझसे कहते हैं कि तू इसी जगह पर क्यों नहीं ठहरता और क्यों नहीं इंजील फैलाता? And I say, because you don't want to hear what I have to tell you. क्योंकि और मैं उन्हें जवाब देता हूँ कि जो मैं बयान करना चाहता हूँ वो आप सुनना नहीं चाहते। Because I will only tell you the truth. क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बताना चाहता I हूँ। won't tell you what you want to hear, मैं वो नहीं बयान कर सकता जो आप सुनना चाहते हैं। only what you need to hear. मैं वो बयान करूँगा जिसकी आपको जरूरत है, And you will be offended by it. और आप जो है वो इससे तंग आ जाएंगे। I want you to know though, brothers and sisters, मैं आप बहनों और भाइयों में आपको बताना चाहता हूँ, in the next several years there will be a move of God in my country again. बहुत आने वाले चंद सालों में फिर से यीशु मसीह की बड़ी बशारत होगी मेरे मुल्क में। But not until my people are hungry enough for my God. लेकिन मेरे मुल्क के जो लोग हैं वो मेरी तरह या आपकी तरह कलाम के लिए भूखे नहीं हैं। A lot of you have probably noticed that I have some holes in my clothes today. आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने देखा है कि मेरी जुराबों में सुराख हैं, वो फटी हुई हैं। I apologize for that and I hope I don't offend any of you. मैं माफी मांगता हूँ और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि इससे आप तंग नहीं आए। I assure you I'm not your average American. I'm not the average American like everyone else there. मैं हकीकी में अमेरिकी नहीं हूँ, जैसा कि मोस्टली अमेरिकन करते हैं कि वो अपनी बॉडी का, अपने कपड़ों का ज्यादा ख्याल रखते हैं। To advance this kingdom it costs money. यीशु मसीह की अंजील को फैलाने के लिए पैसों की जरूरत है। So my Jesus told me to sell everything. यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि हर चीज बेच डालो। And he said go. और उसने कहा कि तू जा। And so that's what I've done. और मैंने ऐसा ही किया। A couple years ago sold everything. 2 साल पहले मैंने हर चीज बेच दी। And I live out of my backpack. और सिर्फ मेरे पास एक बैग है जिसके जरिए मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ। I have very little money. मेरे पास बहुत ही कम पैसा है। But God has taken me to more nations. लेकिन फिर भी खुदा मुझे दूसरी कौमों में लेकर जा रहा है। Preached in front of more people. ज्यादा से ज्यादा लोगों को कलाम की खुशखबरी दूं। And given me more opportunities और मुझे और ज्यादा मौके फराहम कर रहा है। than I could have ever imagined with money. और मैंने कभी ऐसा तसव्वुर भी नहीं किया था कि मैं पैसों के बगैर भी इतने बड़े-बड़े काम कर I सकता wonder today how many of you know और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आज इस बात को सुने that my Jesus कि मेरे यीशु ने is more than able वो जो है वो हमारी जरूरियात से बढ़कर हमें देता है। to supply all of your needs वो आपको बहुत ज्यादा देना चाहता है, वो तमाम जरूरियात को पूरा करना चाहता है। according to the riches in Christ Jesus. वो सिर्फ यीशु मसीह के जरिए ये सब कुछ करना चाहता है। The Bible says बाइबल कहती है that our Heavenly Father, सिर्फ हमारा आसमानी बाप He doesn't even let the birds go hungry, वो परिंदों को भी भूखा नहीं रहने देता, provides them a shelter. वो उन्हें पनाह मुहैया करता है। How much more people like you and me? और आप जैसे और मुझ जैसे कितने लोग हैं, All we have to do is cast our cares upon Him. हमें सिर्फ
इस बात की जरूरत है कि हम अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दें। I want to leave you with one thought today. आज मैं आपको इस बात से बखूबी आगाह करना चाहता हूँ। If my God is calling you to do something bigger than yourself, अगर मेरा यीशु नासरी आपको बुला रहा है कि आप कुछ बड़ा करें, if He's raising you up to advance the kingdom of Jesus Christ, अगर वो आपको खड़ा कर रहा है कि आप यीशु मसीह की बादशाहत को इस दुनिया में कायम करें, to go out into the streets and boldly proclaim this Jesus, कि आप गलियों में निकलें और इंजील की मुनादी करें, or to go to another nation, कि आप दूसरे मुमालिक में जाएं, I want you to know this. मैं आपको बताना चाहता हूँ, If my God calls you to it, अगर मेरे यीशु ने आपको इस काम के लिए बुलाया है, He will provide everything for वो it. आपको हर एक चीज मुहैया करेगा। जोरदार तालियां। He does that वो ऐसा करता है only after you take that step of faith. अगर आप ईमान का पहला कदम बढ़ाते हैं। Because if you stay back here and say, God, लेकिन अगर आप पाँव वापस करते हैं और कहते हैं, ओ खुदा, God, I'm ready to do what you called me to do, खुदावन मैं तैयार हूँ जिसके लिए तूने मुझे बुलाया है, but you refuse to step out in faith, लेकिन आप जो ईमान का कदम है उसे नहीं बढ़ाते, you'll do nothing for my King. आप यीशु मसीह के लिए कुछ नहीं कर सकते। Because in order to please my King, क्योंकि उसने कहा है कि मुझे खुश करो, यानी मेरे यीशु को खुश करो। you must first believe that He exists, आपको ये ईमान लाने की जरूरत है कि वो इस जगह पर मौजूद है, वो जिंदा है, and He is a rewarder of those that diligently seek Him. वो उसका उन लोगों के लिए बड़ा मंसूबा है, बड़ा रिवार्ड है, बड़ा इनाम है जो उसे अपनी जिंदगियों में कबूल करते हैं, उसकी बादशाहत को देखते हैं। I believe my King is about to do a new thing in the nations. मेरा ईमान है कि मेरा यीशु नासरी जो है वो कौमों में बड़े-बड़े काम करने को है। He's about to do a new thing here in Pakistan. वो पाकिस्तान में बहुत सी नई चीजें करने को है। He's raising up a new generation. वो नई कौम को, नए लोगों को खड़ा करने को है। Ones who are forcefully engaging with our King. अब जब हम यीशु मसीह से अपना राब्ता कायम करते हैं, That are willing to take that step of faith. और अगर हम चाहते हैं कि हम ईमान का पहला स्टेप बढ़ाते हैं, And say, Jesus, I want nothing in this world but to know you. यीशु नासरी मैं इस दुनिया की किसी चीज से मोहब्बत नहीं करता, मैं तुझे जानना चाहता हूँ And make you known. और आपको जानना होगा। It has been an absolute honor to speak to my brothers and sisters today. ये वाकई मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से आज खुदा उनका कलाम शेयर कर रहा हूँ। And I'd like to keep my message short. और मैं अपने जो अपने मैसेज को बहुत ही शॉर्ट करना चाहता हूँ, छोटा करना चाहता हूँ। Because I believe you have already understood the point. क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने जो पॉइंट मैं आपके साथ, जो मेन बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो आप समझ चुके हैं। We don't live by sight, हम आंखों के जरिए नहीं जिंदा हैं, but by faith in this God. हम ईमान के जरिए जिंदा हैं। It is an upside down kingdom. और उसकी बादशाहत को आसमान से इस जगह पर कायम करने के लिए है। Everything that we do seems weird to the outside world, जो काम हम करते हैं वो लोगों के लिए बड़े अजीब हैं, but in time they will see like we see. पर वक़्त के आने पर वो देखेंगे जैसा कि हम देखते हैं। I would like to pray for you. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। I would like to pray for each of you. मैं आप में से हर एक के लिए दुआ करना चाहता हूँ। I believe that my God is going to meet you. मेरा ईमान है कि मेरा यीशु आपसे मिलने को है। I believe that my God knows your name. मेरा ईमान है कि यीशु मसीह आप सबके नाम जानता है। I know that my God मैं जानता हूँ कि मेरा खुदा thinks about each of you constantly. आपके बारे में बहुत ही गहराई के साथ सोचता है। The Bible says that your names are engraved in the palms of His hands. यीशु बाइबल बयान करती है कि आप सबके नाम उसकी हथेली पर लिखे गए हैं। And that He even counts every single hair on your body. वो आपके हर जिस्म के हर हिस्से से बखूबी वाकिफ है। He knows everything that we did wrong. वो जानता है कि हमने क्या गलतियां की हैं। And He looks at our heart at the same time. और वो उसी वक्त हमारे दिल पर भी निगाह करता है। And all He wants is to be able to talk to you more. और वो चाहता है कि आपसे और ज्यादा बात करे। And to one day bring you to Him. और एक दिन आपको उसके पास जाना है। If you are part of that next generation, I would encourage you to stand. अगर आप चाहते हैं कि आप उस नई मखलूक का, नए लोगों का हिस्सा बने जो पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको आपकी हौसला अफजाई करता हूँ। And I would like to pray a blessing over you. और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए दुआ करूँ और आपको
ब्लेस करूं, बरकत दूं, that in the next several weeks, और आने वाले चंद हफ्तों में my God's going to make a complete transformation in your life. और मैं चाहता हूं, मैं ईमान रखता हूं कि मेरा यीशु आने वाले चंद हफ्तों में आपकी जिंदगियों को बदलने को है, It will begin inside of your heart, और वो आपके दिल से शुरू करेगा, and then people will see it on the और outside. तब लोग आपको बाहर से देखेंगे. If you would like to be prayed for, I would encourage you to stand now. अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग खड़े हो जाएं. Father, we thank you right now in the name of Jesus. खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह के नाम में. I thank you for so many that are gathered here today. खुदावंद, मैं इन सब के लिए दुआ करता हूं जो आज शाम इस जगह पर मौजूद हैं. Father, you know each of their needs. खुदावंद, तू एक एक की जरूरियात को जानता है. Father, some of them need a physical touch from you. खुदावंद, इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत है कि तू उनके जिस्मों को, उनके बदनों को छुए. Some of them need to become prosperous, Father. खुदावंद, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खुशहाल होने की जरूरत है. Some of them need to be filled with boldness. बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें रूह से ममूर होने की जरूरत है. Father, some of them need to have a hunger for your written word. खुदावंद, इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें भूखा होने की जरूरत है तेरे कलाम के लिए. God, you know each and every need here. खुदावंद, तू हर एक जरूरत को जानता है. We speak life into him in the name of Jesus. हम ये जिंदगी, ये बातें यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. We say life is in you in the name of Jesus. खुदावंद, हम जिंदगी को देखते हैं इनकी जिंदगियों में तुम्हारे जरिए. And Father, we plead your precious son's blood over them. खुदावंद, हम तेरे यीशु मसीह के हम तेरे बेटे यीशु मसीह का लहू इनकी जिंदगियों पर मांगते हैं. Raise up that new generation here in Pakistan. खुदावंद, नई मखलूक को पाकिस्तान में खड़ा कर. Raise up your prayer warriors. खुदावंद, दुआ को लोगों को पाकिस्तान में खड़ा कर. Ones who intercede for others night and day. खुदावंद, हम बाकी ईमानदार दिनों में देखेंगे. And raise up people of faith. ईमान के जरिए से लोगों को खड़ा कर. Let signs and wonders come forth from their खुदावंद, hands. बहुत से मौजूदात, बहुत से अजीब काम इस जगह पर हों. We ask all this to bring your son glory here in Pakistan. और खुदावंद, हम सिर्फ और सिर्फ तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को जलाल देना चाहते हैं मुल्क पाकिस्तान में. We ask this all through the precious name of Jesus the Christ. हम ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे यीशु अल मसीह के नाम से. Amen. आमीन.